Hello friends, today we are going to learn about our new chapter number 2, our body parts. Before starting the chapter, let's sing and recite a poem which is given in this page. I run, jump and kick with my legs. Run, jump, kick means with the help of leg we run, we jump and we kick. I pick, write and point with my fingers. Pick, write, point means with the help of fingers we pick something, we write and we point out something. I eat, speak and sing with my mouth. Eat, speak, sing means with the help of mouth we eat different food, we speak and we sing. I hold, catch and clap with my hands. Hold, catch, clap means with the help of hands we hold different things, we catch and we clap. So let's start our chapter number 2, our body parts. Friends, look at this picture and label the different parts of the body. Here a girl is present and we have to write the different parts of body. See, first is head, second is nose. Nose, with the help of nose we can smell different things. Third is cheek. The fourth one is neck. With the help of neck, what we do? We move our head side to side, up and down. Now fifth number is stomach. Sixth is wrist. Seventh is ankle. Eighth is toe. Ninth is hair. 10th is eyes. With the help of eyes, we see different shape, color and objects. Now 11th number is ears. With the help of ear, we hear different sounds. 12th number is chin. 13th number is chest. 14th number is elbow. 15th is thumb. 16th is fingers. With the help of fingers, we write. We hold different things. 17th number is knee, and with the help of knee, we bend our body. 18th is heel. So, we have to learn different parts of our body, and you know that our body has many parts and each part has a name. Each part is useful for us. Each part of our body does a special job for us. All of them work together. Means every body part help us to do different activities. So now we will have to start our new chapter, that is our body parts, and with the help of this chapter we have to learn our different body parts and their functions. So now we have to learn different body parts and their function. You know that our body is made up of different parts. Each part help us to do many things. Means with the help of each part we can do different things. First is hand. We use our hand to eat, write, carry and hold things. Okay, look at this picture. In first picture a boy is eating. With the help of hand he eats. एक बेबी देखो यहाँ पर जो खाना खा रहा है और किसकी हेल्प से खा रहा है? हैंड की हेल्प से. Now look at the second picture. A boy is writing. Now with the help of hand he writes different things. And look at this picture. Here a girl is there, and in this picture
girl is holding a hockey stick. Means with the help of hand we can hold, with the help of hand we eat, with the help of hand we write. So hand help us to do different things. Second is we use our arms, shoulders and hands together to push, pull and throw things. Look at this picture. A boy is pushing a table. A girl is pulling the drawer of a cupboard, and a boy is throwing a ball. Means with the help of our arms and shoulders and hands together, अगर हम अपनी आर्म, शोल्डर और हैंड तीनों का यूज़ कर सकते हैं पुश करने के लिए, चीज़ों को, किसी चीज़ को खिसकाने के लिए, पुश करने के लिए, पुल करने के लिए मतलब किन्हीं चीज़ों को खींचने के लिए, एंड थ्रो करने के लिए, किसी चीज़ को फेंकने के लिए। पर ये तीनों की हेल्प से होता है, आर्म्स, शोल्डर्स एंड हैंड। Means with the help of arms, shoulders and hands together we push, we pull and we throw different things. Now third is we use our back to stand straight and to bend forward and backward. Look at this picture. One boy is standing here. Means with the help of back वी स्टैंड स्ट्रेट। अगर बैक की हेल्प से हम सीधे खड़े होते हैं, स्टैंड स्ट्रेट। टू बेंड फॉरवर्ड, आगे की तरफ झुक सकते हैं, एंड बैक बेंड बैकवर्ड, और पीछे की तरफ भी हम मुड़ सकते हैं। सो विद द हेल्प ऑफ हैंड वी ईट, वी कैन ईट, वी कैन राइट, वी कैन कैरी एंड होल्ड थिंग्स। नाउ विद द हेल्प ऑफ आर्म, शोल्डर्स एंड हैंड्स टुगेदर we push, we pull and we throw different things. And with the help of back we stand straight, we bend forward and backward. Now our fourth body part is knees. Knees means घुटने, ठीक है। We use our knees to bend down. हम अपनी नीज़ का यूज़ करते हैं बेंड होने के लिए, झुकने के लिए, नीचे झुकने के लिए। स्क्वैट, स्क्वैट मीन्स सिट ऑन योर हील्स, अपने हील से नी को बेंड करके बैठना स्क्वैट कहलाता है। एंड नील के लिए, नील मीन्स दोनों घुटने ग्राउंड पर रख के उस दोनों घुटनों को मोड़ के ग्राउंड पे रख के बैठने को नील कहते हैं। Look at this picture. One boy is bending down, squat and kneel. Means with the help of knees we bend down, we squat and we kneel. Okay. Now fifth body part is neck. With the help of neck we move our head from side to side and up and down. Look at this picture. With the help of neck we move our head from side to side, मतलब एक साइड से दूसरे साइड मूव करने के लिए, हेड को मूव कराने के लिए हमें नेक की हेल्प लगती है। अप एंड डाउन, ऊपर और नीचे देखने के लिए भी हम नेक की हेल्प लेते हैं। नाउ वी हैव टू लर्न अबाउट आवर सेंस ऑर्गन्स. ऑलरेडी यू हैव लर्न इट class 1. Okay, can you tell me how many sense organs are there in our body? Yes, very good. 5 sense organs are there in our body. Okay, can you tell me the name of 5 sense organs? Yes, eyes. First is eyes, ears, nose, tongue and skin are our sense organs. And these sense organs help us to sense, to feel different things around us. ये जो सेंस ऑर्गन होते हैं ये हमें हेल्प करते हैं हमारे आसपास जो भी चीज़ें होती हैं उन्हें फील करने में, उन्हें सेंस करने के लिए हमें हेल्प करते हैं. Our first sense organ is nose. What is the use of nose? Nose help us to smell.
स्मेल कैन बी गुड और बैड। आप सभी को मालूम है हम नोज़ का यूज़ करते हैं स्मेल करने के लिए, ब्रीथ करने के लिए। जब भी हम किसी भी गार्डन में जाते हैं, फ्लावर के आसपास जब हम घूमते हैं तो हमें गुड स्मेल आती है। और जब भी हम कभी गार्बेज के आसपास से निकलते हैं या वहाँ से जाते हैं तो हमारी नोज़ हमें इंडिकेट कर देती है, बताती है कि यहाँ से बैड स्मेल आ रही है, तो इसका मतलब यहाँ पर आसपास गार्बेज है। So we use our nose to smell. Now our second sense organ is eyes. Eyes help us to see. Eyes हमें क्या करती है? Help करती है देखने के लिए. We can see the size, shape and color of thing around us. With the help of eyes, we can see different size, shape and colors of different objects. Okay. Now our third sense organ is ears. Ears help us to hear different sounds. Ear हमें help करता है different sounds सुनने के लिए। जब भी आप मॉर्निंग में जल्दी उठते हैं तो आपको बहुत सारे डिफरेंट साउंड सुनाई देते हैं। कहीं पर कोयल की आवाज़ आती है, कहीं मोर बोल रहे होते हैं, कहीं पर लाफिंग क्लब के जो मेंबर्स होते हैं वो हंसते रहते हैं। तो ये सारे डिफरेंट साउंड्स हमें सुनने में हेल्प करता है ईयर्स। ओके, नाउ आवर फोर्थ sense organ is tongue. Tongue help us to taste different food items. हमारे जो टंग होता है वो हमें हेल्प करता है डिफरेंट फूड आइटम्स को टेस्ट करने के लिए। और टेस्ट क्या, कौन कौन से टेस्ट होते हैं? स्वीट, सोर, बिटर एंड सॉल्टी। मीठा, खट्टा, जो कड़वा होता है, बिटर करेला आपने खाया ही होगा जो आपको कड़वा लगता है, एंड सॉल्टी थिंग्स. So tongue help us to taste sweet, sour, bitter and salty things. Now our last sense organ is skin. Skin help us to touch and feel. Skin हमें help करता है touch करने में और feel करने में. Whether the object is hard or soft, whether the thing is hot or cold, or whether the surfaces are smooth or rough. मीन्स हार्ड, हम जब भी किसी सरफेस को छूते हैं या किसी चीज़ को छूते हैं तो हमें स्किन से की हेल्प से हमें पता चलता है कि वो सरफेस हार्ड है या सॉफ्ट है। जैसे हमने एक वुड छुई तो वुड क्या होगी? हार्ड होगी। और अगर हम एक इरेज़र छुएंगे तो इरेज़र क्या होगी? सॉफ्ट होगी। अगर हम टी छुएंगे, जो आप रोज़ चाय पीते हैं आपके घर में, उस टी को छुएंगे तो वो हॉट होगा। और अगर आपने आइसक्रीम छू के देखी तो वो क्या होगी? कोल्ड होगी। ठीक है। अगर आपने स्मूथ किसी कॉपी के ऊपर की सरफेस को छुई तो वो स्मूथ होगी। और अगर आपने कहीं पर ज़मीन, कोई भी ग्राउंड जहाँ पर रोड नहीं बनी हो, कोई सरफेस को छुएंगे तो वो क्या आपको फील कराएगी आपकी स्किन कि वो सरफेस रफ है। ठीक है। और वन मोर इम्पॉर्टेंट थिंग दैट स्किन इज़ द लार्जेस्ट सेंस ऑर्गन इन अवर बॉडी। सबसे लार्जेस्ट सेंस ऑर्गन हमारी बॉडी में कौन सा है? स्किन. सो what you have to learn, you have learned about functions of our body parts, our sense organs. Okay, so children, we have finished different body parts and their functions, our sense organs. Now we have to learn about how to take care of our body parts. We need to take care of our body parts and keep them clean. It's our duty to keep our body clean and we have to take care of our different body parts. How? First, take a bath daily with soap and water. So first point is we have to take bath daily with soap and water. Means we have to take bath daily. हमें रोज नहाना चाहिए सोप और वाटर से. क्लीन ऑल द बॉडी पार्ट्स एंड वाइप देम वेल. और हमें रोज़ अपने बॉडी पार्ट्स को क्लीन करना चाहिए और उन्हें वाइप भी करना चाहिए, पोंछना भी चाहिए. नाउ द सेकेंड इज ब्रश योर टीथ ट्वाइस अ डे. ऑलवेज डॉक्टर सेज दैट यू हैव टू ब्रश योर टीथ ट्वाइस अ डे. हमें 2 बार दिन में ब्रश करना चाहिए, एक बार सुबह और एक बार रात को सोने से पहले. Now third is rinse your mouth after each meal.
हम जब भी खाना खाते हैं, आफ्टर ईच मील वी हैव टू रिंस आवर माउथ। ओके, जब भी हम खाना खाते हैं हमें क्या करना चाहिए, अपने माउथ को रिंस करना चाहिए, पानी लेके थोड़ा सा कुल्ला करना चाहिए, जिससे क्या होता है जितने भी फूड पार्टिकल्स हमारे दांतों में जमे रहते हैं वो क्या होते हैं, हमारे दांतों से निकल जाते हैं। नाउ फोर्थ पॉइंट इज़ क्लीन योर नोज़ एंड ईयर्स विद अ क्लीन क्लोथ। हमेशा हमें अपनी नोज़ और जो ईयर्स हैं उन्हें क्लीन क्लोथ से क्लीन करना चाहिए। उनमें कोई भी शार्प ऑब्जेक्ट्स नहीं डालना है आपको सिर्फ क्लीन करना है क्लीन क्लोथ से। स्प्लैश वाटर इन योर आइज़ टू कीप देम क्लीन। हमेशा अपनी आइज़ को भी क्लीन करने के लिए आपको क्या करना चाहिए, स्प्लैश करना चाहिए। स्प्लैश का मतलब पानी हम छपके से डालते हैं, मतलब पानी तेज़ी से जब डालते हैं अपनी आँखों पे हाथों की हेल्प से, तो उसे स्प्लैश बोलते हैं। ठीक है, स्प्लैश वाटर इन योर आइज़ टू कीप देम क्लीन। अपनी आँखों को क्लीन करने के लिए हमें स्प्लैश करना चाहिए। ठीक है। ट्रिम योर नेल्स रेगुलरली। हमें अपने जो नेल्स हैं उन्हें क्या करने चाहिए, ट्रिम करने चाहिए। ट्रिम मतलब छोटे करने चाहिए। नेल्स हमें बड़े नहीं करने चाहिए, क्योंकि नेल्स में बहुत सारे जर्म्स रह जाते हैं जो कि हम जब खाना खाते हैं तो हमारी बॉडी में अंदर चले जाते हैं। इसलिए हमेशा हमें रेगुलरली वीकली अपने जो नेल्स हैं उन्हें ट्रिम करना चाहिए। नाउ नेक्स्ट इज ऑयल, शैम्पू एंड कॉम योर हेयर टू कीप देम नीट एंड क्लीन। हमेशा अपने जो हेयर्स हैं उनको आपको नीट और क्लीन रखने के लिए ऑयलिंग करनी चाहिए ताकि आपके हेयर्स अच्छे हो सकें, शैम्पू करना चाहिए और कॉम्बिंग करना चाहिए। Now next is wash your hands before and after each meal and also after using toilet. ये सबसे मस्ट है। अगर आपको हेल्दी रहना, आपको बीमार नहीं पड़ना है, तो हमेशा खाने से पहले और खाने के बाद अपने हैंड्स को अच्छे से वॉश करना चाहिए। और जब भी आप टॉयलेट जाते हैं या टॉयलेट से वापस आते हैं तो भी आपको अपने हैंड को अच्छे से वॉश करना चाहिए। अगर आप ये सारी चीज़ें मानेंगे तो आप हमेशा एक हेल्दी ह्यूमन बीइंग बनेंगे। ठीक है। नाउ सम डूज एंड डोंट्स वी हैव टू लर्न। सम डूज एंड डोंट्स मीन्स हमें क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए। अब हमें ये पढ़ना है। नेवर प्ले विथ शार्प ऑब्जेक्ट्स और पुट देम इनसाइड योर आईज, ईयर्स एंड नोज। आप सभी को मालूम है आईज, ईयर्स और नोज़ जो है हमारे इम्पॉर्टेंट ऑर्गन है, तो हमें कभी भी शार्प ऑब्जेक्ट्स उनके अंदर नहीं डालने चाहिए। डू नॉट वॉच टीवी और कंप्यूटर फॉर अ लॉन्ग टाइम। अगर आपको अपनी आइज़ हमेशा हेल्दी रखनी है, उसमें स्पेक्ट्स नहीं लगवाना है, तो आपको ज़्यादा देर तक टीवी नहीं देखना चाहिए और कंप्यूटर पे भी नहीं खेलना चाहिए। डू नॉट लुक एट द सन डायरेक्टली। कभी भी सन को डायरेक्टली नहीं देखना चाहिए। फिर पॉइंट इज़ अवॉइड रीडिंग इन डिम लाइट। जब लाइट कम हो तो हमें नहीं पढ़ना चाहिए, उस समय रीडिंग नहीं करनी चाहिए। जब प्रॉपर लाइट हो तब हमें रीडिंग करनी चाहिए। डू नॉट लिसन टू वेरी लाउड म्यूज़िक। कभी भी लाउड म्यूज़िक नहीं सुनना चाहिए क्योंकि उससे हमारे कान इफेक्टेड हो जाते हैं। ईट लॉट्स ऑफ फ्रूट्स एंड ग्रीन वेजिटेबल्स टू कीप योर सेल्फ हेल्दी।